Hello friends, this is Manisha Punch and we will be starting with a new chapter of photograph by Shirley Tolson. Now children, let us first see about the author Shirley Tolson. Now look at the picture. Now Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in England. She was a writer who came under the influence of Celtic Christianity. Now, she had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. She secured a BA on literature from a college in London in the year 1953. Shortly, she took writing as career but also served as the editor for many magazines in meantime. She married Alan in February 1960 and she had three children. Okay. Now, children, let us move to the introduction of the poem. Now, the poem, a photograph, is a splendid portrayal of uncertainty of life and death, and it introduces the theme of memories, souvenirs into the conversation of morality. Now, death is often thought as the culmination of change while life is brimming with motion. The snapshot is used as a symbol to depict such certain but unpredictable change. Now, the poem, children, can be divided into into three separate moments. Now, children, can we now start with the lesson, or let's read the chapter? Okay, children. Now let's start. Okay, let's start with the chapter. Now this is the first line. These are the lines. Okay, I've divided the lines so that you could easily grab them. Okay, now first four line. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, with each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Now, the cardboard shows me how it was. Cardboard किसको बोला गया है चिल्ड्रन? कार्डबोर्ड बोला गया है पिक्चर. ठीक है, और कौन सी पिक्चर? आई शो यू दिस पिक्चर. ठीक है, देखो वो पूरा का पूरा क्या है, कार्डबोर्ड का है. ठीक है, पूरा पूरा फ्रेम जो है वो कार्डबोर्ड की है, इसीलिए इस पिक्चर को कार्डबोर्ड बोला गया है. ओके, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. टू गर्ल कौन है? पहले राइटर अपनी मदर के बारे में बोल रहा है और ये दोनों उनकी कजन्स है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. तो मे बी उनमें से कोई एक मदर थी और दो उनकी कजन थी. एंड शी, द बिग गर्ल. शी कौन किसको बोला है? राइटर को बोला गया है. शी इज द बिग गर्ल. ओके चिल्ड्रन, शी इज सम 12 years old. कितने साल की है उनकी मदर? 12 years old. Now, see the meaning of paddling. Paddling means to walk with no shoes through water. I will just show you the image. Actually, the image of these. What do you call it? What does a paddling looks like? See, this is the way. Okay. Now, in these above line, the poet is looking at an old photo album which is made up of cardboard. In the picture, there are three girls who are walking on the beach, okay, holding each other's hand. The girl in the middle is the tallest
and oldest. ठीक है. The other two girls on each side are younger than her. Now you can look at the picture. The girl in the middle is the poet's mother. ठीक है. शर्ले टॉल्सन की mother है. And she is around how many years old? 12 years old, children. Okay. Now let us move to next. Okay. Now it is line from 5 to 9. It says, all three stood still to smile through their hair. Now in the above lines, children, the poet describes how the photograph was taken. Okay, वो दिखा रहे हैं कि फोटोग्राफ कैसे ली गई होगी. Her mother's uncle. Now at the uncle with the camera, a sweet face. अब क्या हो रहा है, अंकल उनकी फोटोग्राफ ले रहे हैं और तीनों के तीनों स्टिल खड़े हुए हैं, ताकि वो फोटो, जब हम फोटो रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं ना, खिंचवाते हैं जब हम फोटो. सिमिलरली इट इज हैपनिंग विद दी व्हाट डू यू कॉल इट, टॉल्सन्स मदर. ठीक है. तो उनके और ऐसा क्यों बोला गया है चिल्ड्रन कि हेयर उनके फेस में आ रहा होगा, क्योंकि चिल्ड्रन ये जो सीन है ये बीच के साइड पर है. ठीक है. तो शायद हवा चल रही थी जिसकी वजह से चिल्ड्रन what was happening, the hair was all over their faces. ठीक है. और वो पोज कर रहे थे. My mother's, that was before I was born. ठीक है. And all three of them, their wet hair open, smiled at the camera. ठीक है. Now Tolson, children, is talking about she's actually talking about these lines before her mother. ठीक है. when she was actually born. ठीक है. वो तब की बात कर रही है जब टॉल्सन was actually born. ठीक है. The poet's attention is drawn towards his mother's face, which is described as a sweet face. देखो, हम sweet face लिखा हुआ है ना, वो किसका लिखा हुआ है, टॉल्सन की मदर का. The photograph was taken long before the poet was born. ठीक है. Because it says my mother, that was before I was born. ठीक है. The poet calls their feet, see, and the sea, which appears to have changed less, right, washed their terrible transient feet. Now the poet calls their feet transient, as they were so young by then and now they had grown older. On the other hand, the sea which touched their feet was changed less. Now देखो, टेरिबली ट्रांजिएंट क्यों बोला गया. नाउ ट्रांजिएंट का क्या टर्म है, ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट टर्म पे. अब उनकी फीट को शॉर्ट टर्म क्यों बोला गया होगा, टेम्पररी क्यों बोला गया. देखो बेटा, जब हम यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे पैर होते हैं छोटे छोटे, राइट. और थोड़े टाइम बाद जैसे ही हम ग्रो करते हैं, हमारे साइज भी ग्रो करते रहते, तो वो टेम्पररी है. बट इन कंपैरिजन, जो कि सी जो फोटोग्राफ में देखा गया है, अगर आप पीछे देखिए तो ये जो सी है, देखो पीछे का व्यू है, वो वैसा का ही वैसा है. तो चेंज क्या हो रहा है, उनके फीट चेंज हो रहे हैं. ठीक है. और क्या चेंज नहीं हो रहा है, जो कि पीछे का बीच है. Right, children? Now let's move on to line 10 to 13. Now some 20-30 years later, after 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. अब क्या कर रही हैं, जो टॉल्सन की एक्चुअली जो मदर है, ठीक है, वो दिखा रही हैं, वो उस फोटो देखकर हंस रही हैं. ठीक है. क्या देखकर हंस रही हैं, फोटो को देखकर हंस रही है. स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ. और जो याद है, वो दो गर्ल थी उनके बगल में खड़ी हुई, तो वो बोल रही है, देखो, एक का नाम क्या था, बेटी, और दूसरे का नाम क्या था, डॉली. शी वुड से, एंड लुक हाउ दे. ठीक है. और बोलते हैं ड्रेस्ड फॉर द बीच. अब देखो, बोलते देखो हम कैसे ड्रेस फॉर द बीच है, राइट. दे वुड हैव प्लान टू टेक अ
photograph beforehand. Now Betty and Dolly, and how their parents would dress all three of them for the beach. They would have planned to take a photograph beforehand. Okay. Now line number 14 to 15. Was her past, mine is her laughter, but both vary with the labored ease of loss. Now उसने क्या बोला है? The poetic recalls the sea holiday was her mother's favorite moment of the past. तो ये favorite moment किसका था? मदर का था, right? और वो favorite moment क्यों था? क्योंकि वो स्माइल करी थी, वो अपने कजन्स के साथ थी, वो हॉलीडे पर थी. While the poet's favorite moment from the past was mother's laughter. ठीक है. Both the women would think about those past memories which cannot live again. वो दोनों के दोनों क्या सोच रही हैं? पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रही हैं, जो कि क्या हो सकता है कि अब वो चीज़ें दोबारा नहीं लिव करी जा सकती. They tried to their best to adjust to what they lost. Now इसका मतलब ये है चिल्ड्रन, दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है चिल्ड्रन, कि पास्ट मेमोरी जो मदर की है वो है उनकी चाइल्डहुड. ठीक है, वो जो फोटोग्राफ देख रही हैं वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है. WRY वेरी मीन्स अंडरवेंट चेंज्ड, और लेबर्ड मीन्स डन विद ग्रेट एफर्ट एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी. और लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब अब जो राइटर की मदर है चिल्ड्रन, वो क्या होगी? उनकी डेथ हो चुकी है. नाउ चिल्ड्रन, अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो वो रिमेंबर कर रही, उनकी बेटी टॉल्सन है, वो रिमेंबर कर रही कि कैसे मेरी मम्मी इन फोटोग्राफ्स को देखकर स्माइल करती थी, राइट? तो दोनों के लिए चिल्ड्रन अलग अलग व्हाट डू यू कॉल इट, अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो चिल्ड्रन जो कि वो याद कर रहे हैं. ठीक है, उनकी पास्ट मेमोरी के लिए. क्यों? क्योंकि अब टॉल्सन की जो मदर हैं उनकी क्या हो चुकी है? उनकी अब डेथ हो चुकी. नाउ लेट्स मूव टू लाइन नंबर 16 एंड 19. नाउ व्हाट डज इट से? नाउ शी वॉज बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of course this circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. इसका मतलब ये है children, in the above line the poet says that her mother died 12 years ago. ठीक है, the same change her mother was in the photograph. ठीक है, whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her on her mother's death. ठीक है, death has silenced her mother, which has also left her speechless. ठीक है, now she has been dead nearly as many years. ठीक है, as that girl lived. that girl का मतलब होता है टॉल्सन की mother lived, and of this circumstances, a fact or a condition. ठीक है, circumstances means a fact or a condition. there is nothing to say at all. उसने बोला मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ. it silences मतलब इतनी ज़्यादा चुप है कि एक साइलेंस ही साइलेंस को चुप करा रही है. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ what do you call it, give you a brief summary of the poem. It says a poem is a tribute to the poet's mother. ठीक है, तो किसके लिए poem लिखी गई है? Poet's mother. She's looking at a old photograph of her mother which has a frame of cardboard. याद है मैंने ये वाली पिक्चर दिखाई थी चिल्ड्रन आपको? देखिए, ये देखो, ये फ्रेम क्या है? कार्डबोर्ड का है. द पिक्चर हैज 3 गर्ल्स. देखिए इस पिक्चर में कितनी गर्ल्स है? 3 गर्ल्स, इन विच द मिडल इज द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट वन. ठीक है, इट इज अ मदर व्हेन शी वॉज 12 years old or so. Beside her, on both sides of her 2 cousins, Betty and Dolly,
who are holding her hands and are younger than her. ठीक है. They went for paddling on a beach holiday. मतलब वो बीच हॉलीडे पर पैडलिंग के लिए गई. पैडलिंग का मतलब जब पानी हल्के हल्के रेत में चलने से पानी क्या कर रहा है, तुम्हारी फीट को टच कर रहा है. Her uncle took her photograph then. तो किसने उनकी फोटोग्राफ ली? उनके अंकल ने. चिल्ड्रन, the poet could help but notice her mother's sweet face. The sea untouched is terribly transient. Terribly transient means ट्रांजिएंट, उनके जो फीट है वो चेंज होते रह रहे. बट जो बीच है, जो पीछे की फोटोग्राफ है, जो बीच है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है. विच डिपिक्टेड दैट शी चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन्ड द सेम. उनके फीट ग्रो करते, तभी ट्रांजिएंट बोला है. ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? इफ वी गो बैक इट मीन्स टेम्पररी. इट मीन्स टेम्पररी. ठीक है. नाउ आफ्टर 20-30 years, ठीक है, her mother would laugh at the photograph. अब वो क्या कर रही हैं? वो फोटोग्राफ दिखा रही हैं. ठीक है, किसको? वो दोनों गर्ल थे जो उनके बगल में खड़े हुए थे, उनका नाम था बेटी एंड डॉली. राइट. तो वो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं. She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the बीच. अब वो बता रहे हैं कि देखो कैसे हमारे पेरेंट्स हमें ड्रेस करते हैं. ऐसा होता है ना, कई बार हम एम्बैरस होते हैं, अरे हमने क्या पहना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या पहनाया. तो सिमिलरली वो अपने ड्रेस को देखकर, उस फोटोग्राफ्स को देखकर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं. द बीच हॉलीडे वॉज अ मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज. तो वो बोल रहे हैं जो ये बीच की मेमोरीज हैं, ठीक है, वो उसकी मदर की फेवरेट पास्ट हॉलीडेज थे. वाइल हर लाफ वॉज पोएट्स फेवरेट मेमोरी. तो मदर की क्या थी? मदर की जो फेवरेट पास्ट मेमोरी थी वो थी क्या, वो बीच मेमोरीज. जो बेटी और डॉली के साथ गए थे, वो उनकी सबसे फेवरेट मेमोरीज थी, क्योंकि वो हॉलीडे पर थे. ठीक है. व्हेन यू आर वेरी इनोसेंट चिल्ड्रन एट दैट टाइम. और जो राइटर की पास्ट मेमोरी क्या हुई, उसकी मदर की लाफ्टर. तो देखिए दोनों की बात तो जा रही है और दोनों में फ़र्क है. बट बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिश्ड अ लॉट एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन. और दोनों के दोनों, बताऊं चिल्ड्रन, उन्होंने वो चीज़ लूज़ कर दी है. मदर ने क्या लूज़ करा है कि वो कहाँ जा रही है, बीच पे एज अ हॉलीडे. राइट. और जो टॉल्सन है, जो राइटर है, उन्होंने क्या वो करी है, उन्होंने क्या वो क्या लूज़ करते हैं, उनकी मेमोरीज को. दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ. ठीक है. नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 years. अब क्या हुआ है? लेट्स कम टू द एंड पार्ट ऑफ इट. इट सेज दैट now the poet's mother is dead. Okay, now the poet mother is dead. Okay. Then children, and which is the same number as her age when the photograph was taken back. जब याद है हम स्टार्टिंग में उसको पढ़ रहे थे तो 12 years एज बोला गया था. अभी 12 साल हो चुके हैं चिल्ड्रन. किसकी डेथ के लिए? मदर की डेथ के लिए. राइट. और अब 12 साल उस टाइम थे जब वो फोटोग्राफ ले रही थी. शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस. अब वो ऑब्वियसली वो ग्रीफ को क्या नहीं कर पा रही है, अपने अंदर नहीं रख पा रही हैं कि वो कितनी ज़्यादा ग्रीफ है. तभी उन्होंने लिखा है इट्स साइलेंस. दैट मीन्स वो साइलेंट भी कितना है, कैसा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ कनेक्टेड विथ साइलेंस. ओके चिल्ड्रन, नाउ थैंक यू. And children, in the next video we will be studying about the
poetic devices, and we will be doing question and answers. Thank you, children.